Now, so far we have studied motion in one dimension, in which only one dimension was good enough to find the position of a particle. If a particle is moving along x-axis, at any point of time, only one coordinate or one dimension was required to find the position of the particle. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंका, उस केस में भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम you need to know only one dimension or one coordinate. So in one dimension motion, only one coordinate or one dimension was good enough to locate the position of the particle, है ना? Motion in gravity was an example of motion in one dimension. Motion in a straight line was also an example of motion in one dimension. So if only one dimension or one coordinate is necessary to locate the position, we say it is motion in one dimension. Now, what is motion in two dimension? Well, इसकी definition लिखो. If position of a particle, if position of a particle can be found, if position of a particle can be found by, if position of a particle can be found by using minimum two coordinates or dimensions, minimum two coordinates or dimensions, it is called motion in two dimension. It is called motion in two dimensions. So two coordinates or Two dimension, two coordinates or two dimensions. It is called motion in two dimension. Example are projectile motion, and second example is circular motion. So projectile motion is an example of motion in two dimension. Circular motion is also an example of motion in two dimension. जैसे कि projectile motion में we throw a ball in air like this, it comes back to the earth. This is y coordinate and this is x coordinate. This is only original position. तो किसी भी पोजीशन पे अगर मेरे को पार्टिकल को लोकेट करना है, आई नीड टू नो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, आई नीड टू नो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट. So there are two coordinates which I need to know the exact location of the particle. So this kind of motion where you need minimum two dimensions or two coordinates to locate the particle, it is called motion in two dimension. और दूसरा एग्जांपल क्या था? सर्कुलर मोशन में जरा देखो. In circular motion also, it is x coordinate, it is y coordinate, p point यहाँ पर है, x, y.
this is x, and this is y. So in circular motion also, in order to know the position of the particle, we have to know minimum two coordinates. So this is also motion in two dimension. So motion in one dimension ka, we need only one coordinate to locate the position. In motion in two dimensions or two coordinates x and y are needed to know the exact location of the particle. तो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन. नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यू कम अक्रॉस मोशन विच आर टू डायमेंशंस. अगर तुम रोड पे जा रहे हो या गाड़ी जा रही है, व्हीकल जा रहा है, तो ये थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा. वो थोड़ा सा जिग जैग भी अगर वो हो रहा है, if a car is moving like this in a road, it is basically motion in two dimension. बिकॉज सिर्फ एक्स से थोड़ी पता लग पाएगा. थोड़ा सा आगे उधर परपेंडिकुलर भी मूव करी ऊपर की तरफ, आगे भी जा रही है. तो जनरली वी कम अक्रॉस मोशंस इन टू डायमेंशन. सपोज लेकिन अगर रोड पे गड्ढे वड्ढे भी हैं, तो वो थर्ड डायमेंशन भी आ जाएगा. कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी लेफ्ट, कभी राइट. तो दैट विल बी मोशन इन थ्री डायमेंशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले हम करें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. इट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. Suppose an object is projected from point O with initial velocity u naught and an angle theta with the horizontal. लिख लो, मेरा डायग्राम बना लो या तुम डायग्राम बनाओ. बन गया डायग्राम. लिखो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर an object which is projected, consider an object which is projected at an angle theta to the horizontal, at an angle theta to the horizontal with with initial velocity u naught, with initial velocity u naught
as shown in figure. आगे लिखो, it reaches at the maximum height at point B. It reaches at the height maximum at the point at the height maximum at a point maximum height at a point B and falls onto the ground at point A. It reaches at the maximum height at point B and falls back on the ground at point A. अब क्या होगा, मोशन को दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ विल रिजॉल्व मोशन इनटू टू पार्ट्स। कैसे करोगे? एक अलोंग एक्स एक्सिस वन मोशन हम कंसिडर करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस हम दूसरा मोशन कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं, ये समझने वाली बात है, अगर हम एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे तो एक्स डायरेक्शन, मुझे एक बात बताओ, इज देयर एनी एक्सेलरेशन और नॉट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, बिकॉज ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस बेसिकली जीरो है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ए एक्सिस acceleration along x direction, which is in this case zero. ये बात समझ में आ रही है नंदिनी? Gravity is acting vertically downward, so there's no acceleration. So when there is no acceleration, what happens to velocity? Velocity will remain the same. तो कहने का मतलब ये हुआ, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं, साथ साथ हम कंपोनेंट भी ले लेते हैं। मैंने तुम्हें कंपोनेंट सिखाया था ना, किसी भी वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। रिकॉल करो जरा। अगर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करें, अगर कोई फोर्स एफ है सपोज, तो थीटा के साथ कितना होता है वो हमेशा? कॉस। और दूसरा कंपोनेंट कितना होता है हमेशा? साइन। सो इफ यू रिजॉल्व एनी वेक्टर, देन उसका जो कंपोनेंट होता है थीटा के साथ वो कॉस होता है, और दूसरा होता है हमेशा साइन। तो सेम वे वी रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। तो यू एक्स जो है वो हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा, एंड जो वाई कंपोनेंट है ये वाला, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, इट इज यू वाई। वाई का मतलब वाई डायरेक्शन, यू नॉट साइन थीटा। तो नाउ वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। यहां तक कहानी क्लियर है बिल्कुल? दूसरी बात, ग्रेविटी कहां पे एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। एंड इनिशियल वर्टिकल मोशन किधर है? इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हमें जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना होगा, उसका साइन क्या होना चाहिए जिया?
साइन कन्वेंशन था मोशन अंडर ग्रेविटी में इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, एवरीथिंग ऑपोजिट टू इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो दोनों ऑपोजिट है, मतलब हमें एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन नेगेटिव लेना होगा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज ए वाई, वाई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है। तो हम्म। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो कैसे है। बिकॉज कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। एक्सेलरेशन कब होता है? जब फोर्स लगता है, जैसे कि हर ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगाती है, ग्रेविटी फोर्स, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। तो वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। लेकिन जब हम्म। हमने किसी बॉडी को फेंक दिया, एक बार रिलीज कर दिया अपने हाथ से, तो उसकी तो हम्म। वेलोसिटी जो है वही रहेगी ना, until unless there is continuous force acting on it। बिकॉज अच्छा। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा हॉरिजॉन्टली तो कुछ। ओके ठीक हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वाई हम्म। डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो सिमिलरली यूएक्स क्या है? यहाँ पे यूएक्स है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज यू वाई? Initial velocity along y direction. So we have initial velocity along x direction, we have initial velocity along y direction. तो सिंस अब x डायरेक्शन में velocity will remain the same, x डायरेक्शन में velocity चेंज नहीं होगी, will remain the same। देखिए y डायरेक्शन में क्या होगा? y डायरेक्शन में बेसिकली सिंपल एग्जांपल जो कि मोशन द ग्रेविटी था, अगर मैं किसी चीज को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ग्रेविटी 10 डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस होती जाएगी, है ना? तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, अब मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूं तुम्हें कि वेलोसिटी किस तरह चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रहेगा, कितना? सेम, यू नॉट कॉस थीटा। लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में? बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, रिटार्डेशन हो रहा है। ग्रेविटी को मैं अगर 10 ले लेता हूँ, उसका मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होती जा रही है। और मैक्सिमम हाइट पे आके क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे आके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल कितनी हो जाएगी? जीरो। वी वाई क्या है? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है? So at the maximum height, vertical velocity becomes zero. यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ऐसा। अब जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल आएगा, वो तो वहां तो रुकेगा नहीं ना वो।
अब वो वापस नीचे गिरना शुरू करेगा। अगर हम सिर्फ वर्टिकल की बात करें तो अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम, वो तो सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल में यहाँ पे जीरो वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी अब इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। क्यों इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है और पार्टिकल भी नीचे ही आएगा मैक्सिमम हाइट के बाद। तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी टिल इट रीचेस द ग्राउंड, एंड व्हेन इट्स अबाउट टू हिट द ग्राउंड it will have the same speed as before, u naught, and it will hit at the same angle as before. ये होता है, हमने मोशन ग्रेविटी में पढ़ा भी था ना, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरा, जिस स्पीड से हम किसी चीज को फेंकते हैं वो वापस उसी स्पीड से आता है, यही हो रहा है यहाँ पे। विद वट एवर स्पीड यू थ्रो समथिंग, इट कम्स बैक विद द सेम स्पीड। तो हमने उसको यू नॉट से फेंका था तो वापस यू नॉट से ही आएगा, मतलब यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आइडियल सिचुएशन। तो इतना एक बार देखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये होता है, गो थ्रू करो, फिर इसका आगे डेराइव करेंगे फॉर्मूलेस। समझ लो एक बार क्या हो रहा है। दो मोशन को हम इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, अलग अलग कंसिडर करेंगे। तो बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, तो जब वो बॉल, क्या, ओके, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, वर्टिकल जीरो हो जाएगी। वर्टिकल कम होती जाएगी ना 10 से? हाँ वो जीरो हो जाएगी ना मैक्सिमम, वहां पे जीरो हो जाएगी ना मैक्सिमम हाइट पे। नहीं नहीं, बिफोर जब वो फेंका है, बिफोर मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट रीच करने हाँ से पहले। थोड़ी सी होगी वो। जैसे सपोज वर्टिकल को हम 50 मीटर है, एक हाँ, सेकंड के बाद 40, दो के बाद 30, तीन के बाद 20, चार के बाद 10, ऐसे ऐसे, और तो 5 सेकंड में जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी कम होती रहेगी ना? हाँ हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी बिकॉज देर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, क्वेश्चन आ सकता है या कंसेप्चुअल, यू नॉट कॉस थीटा ही रहेगा ये हमेशा, यहाँ भी यू नॉट कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आने पे क्या बन जाएगा, माइनस यू नॉट साइन थीटा हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया? और कुछ क्वेश्चन? हाँ। सर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज एक्सेलरेट, नहीं, स्टे सेम बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलेशन जब तक नहीं होगा तब तक वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है ना फिर। हाँ, एंड बिकॉज ग्रेविटी इज हाँ, अलोंग एक्स देखो वाई एक्सिस। एक्सेलेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी विल रिमेन चेंज। लेकिन ग्रेविटी में क्या हो रहा है, इनिशियली वो रिटार्डेशन का काम कर रही है मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट के बाद वो क्या कर रही है, वो एक्सेलेरेशन बन रही है। ठीक है। तो इनिशियली वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम हाइट जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस नीचे गिरना शुरू करेगा। मतलब ओके। हमने इस मोशन को दो इंडिविजुअल मोशन में सेग्रीगेट कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल मोशन ले लिया, एक वर्टिकल मोशन ले लिया, अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। और दोनों में हम तीनों इक्वेशन यूज कर लेंगे। मतलब वी विल यूज, मैं तुम्हें एक जनरल केस बताता हूँ, इसको हटा दूं ना। Now I take a general case when where there is acceleration along x-axis also and also. एक जनरल केस लेके देखते हैं कि सपोज कोई ऐसी मोशन है, इमेजिनरी मोशन इन टू डायमेंशन, सम एग्जांपल, जिसमें कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, सो देर इज
Initial velocity ux along x direction. u मतलब इनिशियल, x मतलब x डायरेक्शन. vx is final velocity along y direction. ax is acceleration. सॉरी, ये भी x ही तो होगा. एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन. मैंने ऐसा मोशन का एग्जांपल लिया जिसमें एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में भी हो रहा है. और डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं x. डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, ये ले लो. तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशंस क्या बनेंगे इसकी? जो पहली इक्वेशन थी मोशन की वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. याद आ गया? तो वो इक्वेशन बन जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. एक्स क्यों लगा दिया मैंने? बिकॉज ऑफ एक्स डायरेक्शन. सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? मिलेगी एस इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना? थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स, है ना? हाँ ठीक है. टू एस होता है इंटू एक्स. अच्छा, एक्स डिस्प्लेसमेंट है. और ओके. सब्सक्रिप्ट है वो. ओके. ये तुम्हारा हो गया मोशन along x direction. Then you have motion along y direction also. तो uy ले लेंगे. Initial velocity along y direction. vy हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी along y direction. ay हो जाएगा acceleration along y direction. डिस्प्लेसमेंट along y direction. ये आ गया. अब इसकी तीनों इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? तो पहली होगी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. हम्म. दूसरी होगी एक्स इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई. सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगी. थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी, है ना? क्या आ गया? सो टू डायमेंशन मोशन को हमने इंडिविजुअली दो दो डायमेंशन में करके बेसिकली वन डायमेंशन मोशन बना दिया. इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशन मोशंस. मोशन इन टू डायमेंशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन इन वन वन डायमेंशन टू टाइम्स. एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी अलोंग वाई एक्सिस. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. लिख लिया था ना ये? अगर सपोज
पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, चलते चलते यहाँ पहुंच गया फाइनली। ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट आफ्टर टी, हम्म, एट टाइम टी। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग वाई डायरेक्शन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन भी हो रहा है ना। तो उसका मैं अगर पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, वो होगा आर। आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओ है पार्टिकल की पोजीशन इनिशियली। इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था। आफ्टर टाइम टी यहाँ आ गया, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो अब जरा देखो उसने एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, एक्स। वाई डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, वाई। हम्म, तो आर वेक्टर कहलाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आफ्टर टाइम टी। आर को कैसे लिखोगे, अब यहां पे तुम्हारा वेक्टर काम आएगा। आर वुड बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर ये स्क्वायर वाला नहीं होगा? वो तो उसमें होगा ना जब मैग्नीट्यूड निकालोगे। अच्छा। अगर तुम्हें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड निकालना है, तब होगा। ओके। सो आर का जब मॉड होगा, विच वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इतना होगा वो। बट वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर, आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट टाइम टी। कि टी टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ था। सेकेंड थिंग इज कि अब उसकी जो वेलोसिटी है वो भी दो दो तरह के ऐसे है। एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी फाइनल, है ना, वी वाई। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स। सिमिलरली इनिशियली भी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी सपोज यू थी, तो उसके भी दो कंपोनेंट थे, एक यू एक्स और दूसरा यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इनिशियल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू वेक्टर वुड बी यू एक्स आई कैप एंड यू वाई जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है उसकी। कुछ कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन है, कुछ कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन है। और अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालोगे। स्क्वायर। हम्म। तो फाइनल के लिए भी यही होगा ना? फाइनल के लिए भी सिमिलरली एक्स। हो जाएगा, हाँ।
और अगर हमें नेट एक्सीलरेशन वेक्टर निकालना है तो वो भी निकल सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी 2 डायमेंशन में है ना। बट जनरली will come across motion where acceleration would be only in one direction dimension. तो ये फिर ए एक्स आई प्लस ए वाई जी कैसे है? ax की डायरेक्शन along x axis ax था, acceleration along y axis y था, ay था. अच्छा ओके So समझ this गई। is the most complicated motion 2 dimension where you have acceleration along x axis and y axis both. हम्म। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, थोड़ा सा सिंपलर वर्जन हो जाता है इसका, उसमें ए एक्स जीरो हो जाता है. ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा. अच्छा ए एक्स जीरो बिकॉज वो हॉरिजॉन्टली है। हाँ. ओके ओके। लिखो, a particle a particle is moving horizontally a particle is moving horizontally with velocity 1 meter per second, with initial velocity 1 meter per second, and it experiences accelerations it experiences acceleration 2 meter per second square 2 meter per second square along x-axis, and 3 meter per second square along y-axis. 3 meter per second square along y-axis. Find its position vector, velocity vector after 8 seconds. After 8 seconds, also find magnitude of displacement vector or position vector and magnitude of position vector. ठीक है, करो. इसका तरीका ये है, जो भी गिवन है एक बार उसको लिखो प्रॉपरली सिंबल्स के साथ. सिंबल मैंने तुम्हें लिखवाया था ना यहाँ पे प्रीवियस केस में. और फिर हर चीज को लिखने के बाद इक्वेशन तुम्हारे सामने है, इनको यूज करो और सॉल्व कर लो. एक्स डायरेक्शन वो एक्स डायरेक्शन में कर लो, वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कर लो. करो, 10 मिनट है तुम्हारे पास आराम से. डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक एंड आंसर इट. सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर निकालना है ना? हाँ देखो, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी. हाँ ठीक। जो गिवन है पहला एक बार सारा लिख लो ढंग से. तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है। हाँ. यूएक्स दे रखा है मैंने, कितना दे रखा है यूएक्स बताओ मुझे. 1 मीटर पर सेकेंड। यूवाई कितना दे रखा है. यू वाई, यू वाई नहीं दिया आपने। यूवाई नहीं दे रखा, मैंने ये लिखवाया कि द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी ली जाएगी, 0. अच्छा। यू टेक यू वाई इज इक्वल टू 0.
यू वाई को जीरो ले लो। यू एक्स पता है, यू वाई पता है, ए एक्स पता है, ए वाई पता है, टी पता है। फर्स्ट इक्वेशन कर लो, वी एक्स आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन आई डोंट थिंक इज नीडेड, है ना। थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये सारे अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालने हैं। एक्स दोनों है ना, एक्स भी है वाई भी है, तभी तो आएगा आर। दिस इज मोशन टू डायमेंशन भाई। अच्छा ओके ओके ठीक है ओके। दिस इज मोशन इन टू डायमेंशन। आराम से करो। टाइम तुम्हें दे ही रखा है।
हो गया? एक मिनट। पार्टिकल वॉज मूविंग इनिशियली अलोंग एक्स डायरेक्शन। यूएक्स दिया था कितना? 1। यूएक्स कितना था? हाँ, 1। हम्म। और AX कितना था? 2। हम्म। UY 0। AY 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना था? 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स। तो अब दोनों मोशन को अलग अलग कंसिडर कर लो। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, VX इज इक्वल टू UX प्लस AXT, ये यूज कर लो। तो वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड आ जाएगी UX विच इज 1। VX कितना आ रहा है? यही आ रहा है, यस सर। 17 मीटर पर सेकंड। फिर सेकेंड मोशन को यूज करके एक्स निकाल लो। एक्स ऐसे ही आएगा ना? UX कितना है? 1। टाइम है 8। AX इज 2। टाइम इज 8। एक्स कितना आ गया? 2 से 2 कट गया, 72 मीटर। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। यस सर। फिर मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन कर लो। वाई डायरेक्शन में VY इज इक्वल टू UY प्लस AYT। UY 0 है, AY 3 था, टाइम था 8। VY आ गया 24 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी इतनी आ गई। जी आ गई। फिर वाई निकालो। जिया टेस्ट के मार्क्स क्या मिल रहे हैं तुम्हें? पता नहीं सर, वो कभी भी दे सकते हैं। अच्छा। टी कितना था? 8। कितना आ रहा है ये आंसर? 96। 96 मीटर। ये आ गया सारा। अब फाइनली मैंने पूछा था कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू XI प्लस YJ। एक्स कितना निकाला है? 72। वाई कितना है? 6। तो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? 8। 8 कॉमन ले सकते हैं क्या? इनफेक्ट 24 कॉमन आया था, नहीं? तो इसकी जरूरत क्या है? ऐसे नहीं सोच सकते? मैग्नीट्यूड भी तो निकालोगे फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा। ये आ गया।
अब इसका जब मॉड लोगे तो फायदा पता है क्या होगा, जो 24 है तो बाहर ही रहेगा, सिर्फ वेक्टर वाले को स्क्वायर करना पड़ेगा। तुमने पूरा किया क्या स्क्वायर? नहीं, मैंने अंडर रूट में छोड़ दिया अभी। हाँ। जिया तुमने क्या किया? और मैंने अब बस मॉड नहीं निकाला था। हम्म। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो आ गई 120 मीटर। ओरिजिनल पॉइंट से उसका डिस्टेंस आ रहा है 120 मीटर। तो पर अगर बिना 24 निकाले तो ये आ रहा है 14900 अंडर रूट। तो नहीं नहीं, उसका कुछ गड़बड़ की है तुमने। 72 का स्क्वायर क्या आ रहा है? ये 5184। 72 का स्क्वायर। जिया तुमने किया था, नहीं किया ना ये? 72 का स्क्वायर किया तो आ रहा है 15184 है ना? हाँ, उसके बाद कौन सा? 96। 96 का स्क्वायर किया, वो कितना आ रहा है? 9216। हाँ, तो उसको ऐड करो तो 14400 आ रहा है, 14400। 144। अच्छा, ओके ओके। 14400 का रूट 12 120 हो गया। और मैं अपना 49 पढ़ रही थी। हम्म। अब वो निकालो वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी वेक्टर कैसे आएगा? वेलोसिटी वेक्टर वुड बी वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है ये, है ना? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा 17 17 I। प्लस 24 जी। हाँ। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? ये तुमने निकाला था ये? नहीं सर, मैंने सिर्फ पोजीशन में होता किया था इसके बाद। 17 स्क्वायर कितना होता है? मैंने कहा था स्क्वायर याद कर लेना सारे, 189। 89। अच्छा, ओके। 24 स्क्वायर कितना होता है? 576 मेरे ख्याल से। करके देखो। 576। 25 होता है, 625 होता है। अच्छा, हाँ, ओके, 576। तो अब अच्छा 289 होता है 17 तो। 289 होता है ना? 289 प्लस 576 कर लो। 865। हाँ, सो दैट इज, रूट निकालना आता है तुम्हें? हाँ। निकालना जरा। जी आई लॉन्ग डिवीजन से रूट निकालो। राइट साइड से पेयर बनाओगे पहले, ठीक है? स्कूल में क्या चैप्टर चल रहा है अभी? फिर चैप्टर 4 शुरू हो गया। लॉज ऑफ मोशन। हम्म। अच्छा। हमारा भी हो जाएगा 2 क्लास के बाद। और फर्स्ट टर्म तुम्हारा कब है अब? अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट? फर्स्ट टर्म एज इन यूटी या फिर हाफ ईयरली? नहीं, हाफ ईयरली जो होता है ना। हाफ ईयरली से सितंबर। हम्म। जी है तुम्हारा? और सितंबर एंड। हम्म। क्या है रूट फिर? लॉन्ग डिव सर 2.9। हाँ,
क्या? 29 पॉइंट समथिंग, अभी वो नहीं निकाला डेसिमल के निकालो बाद का। निकालो निकालो, पूरा आना चाहिए, मैंने बताया था तुम्हें। यू शुड नो हाउ टू कितने फाइंड। निकालना? 865, यू मेक पेयर्स फ्रॉम राइट साइड, 2 into 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस करोगे यहाँ पे ऐड तो जाएगा 4, फिर यू ब्रिंग डाउन ए पेयर, फिर 9 ले लोगे, जाएगा 58। 9 into 49 कितना हुआ? 441। और 41। 441 21 का स्क्वायर भी होता है। फिर डेसिमल लगा देना, माइनस करने के बाद 24 आ गया, तो यू ब्रिंग डाउन ए पेयर ऑफ जीरोज, फिर क्या आएगा देखो, 5, 2400 है ना, 3 लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, 4 भी हो सकता है। फिर 4 होगा। हाँ तो 29.4 आ गया अप्रोक्सीमेटली ना। हम्म। बस हो गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व। तो ये था बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मोशन 2 डायमेंशन, जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस भी वेलोसिटी है, वाई भी है, दोनों में एक्सेलरेशन भी हो रहा है। अब थोड़ा सिंपल वर्जन लेते हैं जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along, a particle is moving in such a way, ऐसे लिखो, particle is moving in such a way that its initial velocity along x-axis, its initial velocity along x-axis is 3 meter per second, and initial velocity along y-axis is 4 meter per second. It experiences acceleration, it experiences acceleration along y-axis. तो हाँ आपने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के बाद क्या बोला था? हाँ, it experiences acceleration along y-axis, which is 2 meter per second square, which is 2 meter per second square. हम्म। But there is no acceleration along x-axis. But there is no acceleration along x-axis. फिर यू वाई था 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, find initial velocity vector, final velocity vector, position vector, and their magnitudes after 10 seconds. ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, कर लो आराम से। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। There's a particle whose initial velocity along x-axis 3 meter per second, y-axis 4 meter per second. It experiences acceleration along x-axis, which is कितना लिखवाया? Along y-axis, which is 2 2 meter per second square, but there is no acceleration along x-axis, है ना? ठीक है। ये लिखवाया ना? फिर मैंने ठीक है। फाइंड 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 वाला। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आफ्टर 10 सेकंड्स करो।
इस बार ए एक्स जीरो है, ठीक है। फिर सबके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। हम्म। देर इज नो एक्सेलरेशन along x axis. तो vx would be same as ux, है ना। फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी along x axis. और सिर्फ x निकाल लो, x कैसे आएगा।
x 40 मीटर आ गया, वी एक्स वही रहेगा, ये था ना? क्या रहा तुम लोगों का आंसर? 40 मीटर नहीं, 30 नहीं होगा। क्या दिया था मैंने? वेलोसिटी यू एक्स कितना दिया था? 3। यू एक्स 3 था ना, 30 आएगा फिर तो। 30। फिर वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है? 4। ए वाई इज 2, टाइम इज 10। वी वाई आ गया 24। क्या आ रहा है वी वाई? हाँ सर, 24। फिर वाई निकालो। यू वाई इज 4, टाइम इज 10। ए वाई इज 4, ए वाई इज 2, सॉरी। कितना आ गया वाई? तो 140। y का क्या? हाँ, 140 पोजिशन। अब तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, आर। आर वेक्टर वुड बी एक्स 30 प्लस 140 जे। तो इसमें तुम 30 कॉमन ले लो। आई नहीं, 140 30 कॉमन नहीं आएगा ना, 10 ही कॉमन आ सकता है। 3i प्लस 14 जे। तो आर का मैग्नीट्यूड 10 तो बाहर है। 9 प्लस 1, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 225 है ना? 225 किसका रूट है? 225 थोड़ी होगा। 225। 205 है। 205 20। होगा। हाँ 205। 205 में तुम्हें निकालना पड़ेगा रूट से। और फिर वेलोसिटी का कितना आएगा? वेलोसिटी वेक्टर वुड बी यू वी एक्स, तो वही है 3। 3i प्लस 24 जे, है ना? आई प्लस 8 जे। तो वी का मॉड कितना हो गया? 3 बाहर, 1 प्लस 64, 3 इंटू √65। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। इस बार क्या था? इट्स वेरी सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। जिससे वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस उसका डायरेक्शन वो नहीं होता एक्सेलेरेशन, यहाँ भी एक्सेलेरेशन नहीं था। तो वापस प्रोजेक्टाइल पे आते हैं अब। दिस इज मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था हमने यू नॉट से थीटा के साथ विद द हॉरिजॉन्टल। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दे गिव दैट इट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो तुम्हें थीटा को 90 माइनस थीटा लेके करना पड़ेगा सॉल्व फिर। तो y और मतलब दूसरा वाला एंगल ले लेते हैं। हाँ ये दे देते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं उसमें थीटा को 90 माइनस थीटा डालना पड़ेगा फिर। ओके।
तो सपोज हम सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। इफ 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। 3 चीजों का। द फर्स्ट फॉर्मूला इज time of flight. Suppose the particle takes, or the object takes, or the projectile takes t time to reach back to the ground, है ना? लिख लो. Suppose object takes total time. Suppose object takes total time, capital T, cap, to reach on the ground at point A. आगे लिखो as time of ascent equal to time of descent, as time of ascent equal to time of descent, time taken by projectile, time taken by projectile to reach at maximum height will be t by 2, will be capital T by 2. तो उसको पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक t लग रहा था, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल T by 2, आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, using first equation of motion along y direction, vy is equal to uy plus ay into t। इसको यूज करो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, सेल देना। तो कैन यू रिपीट क्या करनी है? क्या हुआ? रिपीट एक बार, क्या करना था? हाँ, तो वी वाई कितना है देखो यहाँ पे, हमने पहले रिजॉल्व किया था ना। वी यू वाई है हमारा यू नॉट साइन थीटा, वी वाई 0 हो गया, और ए वाई विल बी माइनस जी बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वी वाई इज 0 एट द मैक्सिमम हाइट, यू वाई इज यू नॉट साइन थीटा, and time is t by 2. Time to reach the maximum height is t by 2. तो gt/2 is equal to u नॉट साइन थीटा, t आ जाएगा यहाँ से। So this is the formula for time of flight. t is equal to 2u sin theta by 2u नॉट sin theta by g। अगर तुम उसमें थीटा को 90 डाल दोगे तो तुम्हारा वर्टिकल मोशन वाला आंसर आ जाएगा।
वर्टिकल मोशन में क्या था, थीटा 90 होता है ना। अगर मैं थीटा को 90 डाल दूं तो इट बी वर्टिकल मोशन, मोशन वर्टिकल डायरेक्शन। तो साइन 91 होता है, तो 2u/g आंसर था उसका, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। मैक्सिमम हाइट यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वी डेराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v² इक्वल टू यू स्क्वायर। हम वाई डायरेक्शन में ही मोशन कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग मोशन इन वाई डायरेक्शन। प्लस 2a y/y। तो वी वाई जीरो है, यू वाई कितना है, u0 साइन थीटा, a कितना है -g, y कितना है h। So you get the formula for maximum height. h आ गया। This is the maximum height, u0 sin square theta by 2g। इसमें अगर तुम थीटा को 90 डाल दोगे तो वो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल जाता है, विच इज u² by 2g। If theta is 90, then it would be motion under gravity vertical direction। अब नेक्स्ट पार्ट बचता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डेराइव करना है। थर्ड पार्ट। चली गई थी। हम्म, क्या हो नंदिनी, लाइट? लाइट चली गई थी। हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव किया यूजिंग थर्ड इक्वेशन। v² को u² प्लस 2as यूज किया। वी वाई जीरो था, यू वाई u0 साइन थीटा था, a था -g और y था h। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव हो गया। थर्ड है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, ये ओ ए के इक्वल है। इसमें हम कंसिडर करेंगे मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसके लिए भी कंसिडर मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, बिकॉज आर जो डिस्टेंस है वो एक्स डायरेक्शन में है। एज यू नो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, u0 cos थीटा। और टाइम टेकन कितना दे रखा है, कैपिटल T मैक्स, है ना। फ्लाइट टाइम जो है, बिकॉज जब ओ से ऑब्जेक्ट चल रहा है वो आर ए पे आके गिरता है, तो टाइम टेकन इज कैपिटल T एंड देर इज नो एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज कर लो सीधा सीधा। ठीक है, सो यू कैन यूज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, ओ ए इक्वल टू स्पीड
into time. तो ओ ए इज इक्वल टू आर, स्पीड कितना था? स्पीड था यू नॉट कॉस थीटा, टाइम कितना था? 2u0 साइन थीटा अपॉन जी। फिर ये मुझे समझ में नहीं आया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ रेंज के लिए क्यों कर रहे हैं? मतलब हाँ, रेंज का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। अगर तुम चाहो तो सेकंड इक्वेशन में यूज कर लो, एक ही बात है। तो उसमें जाएगा एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वो जीरो हो जाएगा। तो यही फिर आएगा ना। क्या रहे हैं? हाँ, हम निकाल क्या रहे हैं? रेंज, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर, अच्छा, ओके डिस्टेंस। ओके ओ ए डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। ओके। जिस पॉइंट से फेंका और जिस पॉइंट पे गिरा, तो उनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अब आर कितना हो जाएगा? यू नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तुमने पढ़ा था ट्रिगो में, डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डेराइव हो गया। तीनों का डेरिवेशन 5 मार्क का आएगा। और अगर क्वेश्चन में उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई एंगल विद वाई एक्सिस, तो तुम्हें जहां भी थीटा लिखा हुआ है वहां पे 90 माइनस थीटा लेके करना पड़ेगा। एक बार इसको पूरे को देखो। सर मैं शायद कल ना क्या? सर मैं शायद कल मैथ्स और ड्राइंग के लिए ना हूँ, पर मैं टेस्ट के लिए आऊंगी। अच्छा, कल कौन से टेस्ट है वैसे? एप्टीट्यूड। ओके, मैथ्स क्लास में क्यों नहीं आ रही हो? सर वो मेरा स्कूल में एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो मुझे जाना है। अच्छा, सर हम मैथ्स में क्या करेंगे कल? मैथ्स में ट्रिगो मेरे ख्याल से मोरलेस हो गया है हमारा। एक दो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आई स्टार्ट विद न्यू चैप्टर में भी। ओके। तो वो इमेजिनरी नंबर्स वाला ना? हाँ, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर कर लें, वो कर लेंगे, वो सबसे इजी है। ओके ठीक है। ये समझ में आ गया सारा? जिया? सर। ठीक है, तो उसको याद कर लेना, ये आएगा डेरिवेशन। हाँ जी। फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ, है ना? थैंक यू सर। ओके।